حق کا مزے ہے نور کا پیکر کل بھی تھا اور کر دیجئے خواب میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، گناہ کرنے والوں یاد رکھو تمہارے ان گناہوں سے رب غافل نہیں ہے۔ تم قرآن پڑھتے تو تمہیں معلوم ہوتا میرے رب کا فرمان ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ خدا فرماتا ہے او گناہ کرنے والوں یاد رکھو ہم تمہاری کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ تم اگر قرآن پڑھتے تو تمہیں پتہ چلتا واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے رب کی ذات جاننے والی ہے۔ تم دن کے اجالوں میں گناہ کرو، رات کے اندھیروں میں گناہ کرو۔ انٹرنیٹ آج ہماری جوانی کی تباہی کا ذریعہ بن گیا، انٹرنیٹ ہماری عیاشیوں کا ذریعہ بن گیا، انٹرنیٹ نے کتنے جوانوں کی جوانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا ہماری جوانی انٹرنیٹ پر باضابطہ یہ گندی زنا کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تھی؟ نہیں میرے عزیز، تمہاری آنکھوں میں نور اسی لیے نہیں ہے کہ تم نے رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر زنا کے ویڈیو دیکھے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں آنکھوں کی شان کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں آنکھوں کا مقام کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ان آنکھوں میں نور کس لیے ہے۔ عاشق سے پوچھو، عاشق کہتا ہے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے سبحان، کتنے جوانوں نے مجھ سے کہا حضرت دعا کر دیجئے خواب میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا خواب میں حضور کا دیدار تم ان آنکھوں سے کرنا چاہتے ہو جن آنکھوں سے رات کے 4 بجے تک انٹرنیٹ پر زنا کی ویڈیو دیکھ، ان آنکھوں سے یار کا دیدار کرو گے؟ ارے جنہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، دیکھو مصر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے چلتے پھرتے 70 بار مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ تم دیکھو گے میرے امام احمد رضا جب یار کی چوکھٹ پہ گئے ہاتھ باندھ کے کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کف نقاب میں ہے۔ تم دیدار کرو گے؟ نہیں، دیدار ایسے نہیں ہوگا، ان گندی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوگا، ان گناہ والی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوگا، رات کو زنا کے مناظر دیکھ کر تمہیں دیدار نہیں ہوگا۔ تم نے نام سنا نہیں خانقاہ میں آنے والوں خسرو کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کون؟ امیر خسرو محبوب الہی کی بارگاہ میں جب کلام لکھ کر لائے تو کہا سن لیا محبوب الہی نے کلام، دیکھو خانقاہ کی بات ہے، سنو، سن لیا کلام۔ سننے کے بعد حضرت محبوب الہی نے فرمایا کلام بہت اچھا لکھا ہے مگر سعدی شیرازی کی بات اور ہے۔ کلام بہت اچھا، کئی بار لکھ کر لائے، ایک دن مرشد کا دامن تھام کے بیٹھ گئے، کہا میرے شیخ ذرا یہ بتائیے سعدی شیرازی کی بات اور ہے، وہ اور بات ہے کیا؟ ذرا وہ بات تو بتا دیجئے۔ دیکھو آنکھیں جب کمال والی ہوتی ہے تو دیدار کیسے ہوتا ہے۔ محبوب الہی نے اپنا رومال اٹھایا، اٹھانے کے بعد امیر خسرو کی آنکھوں پہ ڈال دیا، رومال ڈالا ہے ادھر، رومال ڈالا ہے ادھر، پردے ہٹا دیے گئے ہیں، سامنے یار کی محفل ہے، تخت پہ مصطفیٰ جان رحمت جلوہ کر رہے ہیں، تخت پہ سامنے جلوہ کر ہے، صحابہ بھی ہے، غلام بھی ہے، دیوانے بھی ہے۔ ایسے عالم میں مصطفیٰ نے کہا سعدی شیرازی اٹھو اور کلام پڑھو، اٹھو کلام پڑھو۔ اور جب کلام پڑھنے پہ آئے تو کیا کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شان دیکھو، جب آنکھیں عظیم ہوتی ہیں تو دکھنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اپنے مرشد سے کہا حضور یہ سعدی شیرازی کی زبان میں اتنی مٹھاس کہاں سے آئی؟ کہا خضر علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا ہے۔ تلاش میں لگ گئے کہ اب کسی دن مجھے بھی ملیں گے، لعاب دہن میں اپنے منہ میں بھی ڈلوا لوں گا۔ ملے خضر علیہ السلام، کہا ڈال دیجیے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن، کہا نہیں وہ ایک ہی کے حصے میں تھا، مل گیا، آپ کو نہیں ملے گا۔
आए खानका में, महबूब इलाही ने चेहरा पढ़ लिया, कहा अमीर खुसरू, खुसरू क्या बात है, चेहरे पे उदासी कैसी है? कहा खिजर तो मिले थे मगर मेरे मुंह में लुआबे दहन न डाला। कहा परेशान क्यों होता है खुसरू, मेरे करीब आ, तेरे मुंह में लुआबे दहन मैं डाल देता हूँ। तेरे मुंह में खानका वालों, ये खानका की बात, खानका की बात है, तेरे मुंह में लुआबे दहन मैं डालता हूँ। करीब आए, लुआबे दहन डाला। जब लुआबे दहन डाल दिया, ऐसा कलाम लिखा है उसके बाद कि वज्द की कैफियत तारी है, अल्लाह अकबर। लोग हैं लेकिन एक नया बंदा आ गया, दांत उछल उछल के दे रहा है। महफिल खत्म हुई, वो बंदा चला गया। अमीर खुसरू ने कहा अपने मुर्शिद महबूब इलाही से, कहा हुजूर आज की महफिल में एक बंदा नया आया, हमने उसे पहली बार नहीं देखा, बड़ी उछल उछल के दांत दे रहा था, वापस भी चला गया, पता नहीं कौन था। फरमाया वही तो थे सादी शिराजी, वही तो थे सादी शिराजी। का मेरा कलाम सुनने आए थे? फरमाया हाँ, खिजर जिसके मुंह में लुआबे दहन डालते उसे दुनिया सुनती है, जिसके मुंह में लुआबे दहन महबूब इलाही डाल दे उसे सादी शिराजी खुद सुनने आ रहे हैं। अपनी आंखों की हिफाजत करो, जवानी की हिफाजत करो, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करो। जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी ज़िना के लिए नहीं है। याद रखो, इमाम गज़ाली ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर ज़िना के बाब में इस हदीस को कोट किया है। फरमाते हैं ज़िना करने वाला एक एक लुक़मे के लिए तरस जाएगा, उसके कारोबार से बरकत को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी उम्र को घटा दिया जाएगा, मौत उसके दरवाजे पे जल्दी दस्तक देगी। आप क्या सोच रहे हैं, शादी ब्याह के मौके पर किसी फेशियल वाले के यहाँ जाकर अपना चेहरा 2 घंटे रगड़वा लेंगे, चेहरा चमक जाएगा? अरे नादान इंसान, जिसके चेहरे से नूर मेरा परवरदिगार खत्म कर दे, दुनिया का कोई सैलून वाला उसके चेहरे को नहीं चमका सकता। जिसके चेहरे से नूर खुदा खत्म कर दे, दुनिया का कोई फेशियल, कोई फेस वॉश उसके चेहरे को नहीं चमका सकता। आप क्या समझ रहे हैं, हजरत ताबीज़ दे दें कारोबार अच्छा हो जाएगा? हजरत के अब्बा भी तावीज़ दे दें कारोबार अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा फरमान नहीं, किसी मौलाना का फरमान नहीं, उसकी ज़बान है जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। किसकी ज़बान? यार की ज़बान, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुँह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। महबूब अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, ज़बान महबूब की है, फरमान परवरदिगार आलम का होता है। हम गुनाह करते जा रहे हैं, क्या हमारी ज़बानी इन कामों के लिए है? आखिरी जुमला, ये ज़िना इतना आम कैसे हुआ? हमारे समाज में ज़िना इतना आम कैसे हुआ? आप जानते हैं ज़िना आम हुआ कि हमने वक्त पर शादियां नहीं की, और जब शादी की तो शादी को इतना महंगा कर दिया कि ज़िना आम हो गया। आज हमारे रिश्ते गरीबों के दरवाजे पे नहीं जाते, रक्षा चलाने वालों क्या कोई लेके नहीं जाता है। हम सोचते हैं नहीं दुनिया की दौलत मिल जाए, माल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। मैं माँ बाप जो लड़कों के हैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, शादी के बाद वो जो लड़की तुम्हारी बहू बन के दुल्हन बन के आएगी ना तुम्हें ये फ्रिज मिलने वाला है, ना वॉशिंग मशीन तुम्हें मिलने वाली है, ना गाड़ी तुम्हें मिलने वाली है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ें, अपने बेटे का रिश्ता ऐसे घर में करें जहाँ बेटी दीनदार हो, नमाजी हो, परहेजगार हो। याद रखना, जब माएँ दीनदार परहेजगार किरदार वाली थी तब जाके बेटा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता था, तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था, तब जाके बेटा उस्मान गाजी पैदा होता था, तब जाके बेटा अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाह सूरी जैसा, महमूद गजनवी जैसा पैदा होता था। अल्लाह अकबर। तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर बनता था। जब से माओ का किरदार बिल्कुल बेरहरवी का शिकार हो गया, देख लो हमारे यहाँ हालात किस तरह की है। नहीं मेरे जवानों, पैगाम लेकर जाओ, हम जवानी गुनाहों में नहीं गुजारेंगे। डरते रहो, अल्लाह का कुरान
कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तुमने गुनाह कर लिया और अजाब नहीं आया तो समझ लेना कि ढील दे दी गई है। तुमने ज्यादती की, अजाब नाजिल नहीं आया, समझ लो कुछ वक्त के लिए मोहलत दे दी गई है। रब मोहलत देना भी जानता है तो वो पकड़ फरमाने वाला भी है, वो रहमानो रहीम भी है, तो वो कहारो जब्बार भी है। कुरान ही में कहा गया इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए डरते रहो कि कहीं पकड़ न लिया जाए, डरते रहो कि आसमान से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल न कर दिया जाए। नहीं मेरे अजीजों, इंटरनेट का ये जो इंटरनेट का डेटा एक ज़माने में पूरे महीने के लिए 1 GB मिलता था, आज ऑफर के नाम पर 3 GB डेटा सुबह से लेकर शाम तक हमारी कौम के जवानों को दिया जा रहा है। और जवान कितने खुश हैं, ऑफर दे दिया गया। ऑफर नहीं दिया गया है, दुनिया ये नहीं चाहती है मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम कामयाब हो जाएं। मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों की ज़िंदगी का कोई मकसद हो। कौन है रात के 4-4 बजे तक पट्टियों पर बैठने वाले? हमारे जवान है। रोडों पर 3-3 बजे बैठने वाले हमारे जवान हैं। वरना दुनिया के किसी ज़ात बिरादरी का बंदा जाके देख लो, 4 बजे तक कोई रोड पे नहीं बैठता है। लोग पढ़ रहे हैं, लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, तरक्की के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने तुम्हें इस खानका में आने का मौका दिया है। आज ये अहद करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह आज के बाद न हम आँखों का ज़िना करेंगे, न कानों का ज़िना करेंगे, न ज़बान का ज़िना करेंगे, न हाथों का ज़िना करेंगे। इमाम अहले सुन्नत की उम्र 4 साल है। कुछ ऐसे गैर मुनासिब लोग आए जिनसे नज़र बचानी थी, मेरे इमाम ने अपने दामन को उठाया, आंखों से लगा लिया, सामने से आवाज़ आई, आपने नीचे का जिस्म खोल दिया, नज़र को छुपा लिया। मेरे इमाम ने फरमाया हाँ, जब नज़र बहकती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान गुनाह करता है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया ज़िना की शुरुआत कहाँ से होती है? फरमाया ज़िना की शुरुआत इंसान की आँख से होती है। जब आँख देखती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान ज़िना करता है। आप जानते हैं इंटरनेट पर ज़िना आँखों से देखने के बाद इंसान क्या करता है? अपने ही हाथों से ज़िना कर लेता है। आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाथ से ज़िना करने वाले पर अल्लाह लानत भेजता है। बंदे मिलकर किसी पर लानत भेज दे और वो लानत पड़ जाए तो हलाको बर्बाद हो जाते हैं। जिस पर खुदा लानत करे, जिस पर खुदा का रसूल लानत करे, वो इंसान दुनिया में कामयाब कैसे हो सकता है? आओ अहद करो, अस्म मुसम्मम करो, खानका से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद ज़िना के करीब न जाएंगे, किसी गैर की बेटी के चेहरे पे नज़र न डालेंगे, शराब के करीब न जाएंगे, शबाब के करीब न जाएंगे। आप जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए और उसको आज़ाद कराने के लिए निकले थे, यहूदियों ने जाल बिछा दिया था रास्ते में लड़कियों का। सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक लड़की मिली, रात में बारिश हुई, रुकना पड़ा। उस लड़की ने कहा क्या मेरी जवानी तुझे अपनी तरफ माइल नहीं करती है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा जवानी माइल तब करती है जब बंदा देखता है अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने नजर उठा के तुझे देखा ही नहीं है। ये किसी और के नहीं, हमारे जवान थे। उसने कहा जवानी की तौहीन न कर, मेरे हुस्न को देखता नहीं है? दुनिया में ऐसा कौन सा हुस्न जिसने तुझे मुतासिर किया है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर नहीं होता। किसी और का किरदार नहीं, हमारा किरदार है। आओ आज की रात खानका में हज़रत अस्हाबे मिल्लत की बारगाह को गवाह बनाकर तौबा करो। आज के बाद शराब के करीब नहीं जाएंगे, ज़िना के करीब नहीं जाएंगे, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह के घर को वीरान नहीं करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे। इसलिए जवानियाँ गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी रब को राज़ी करने के लिए है। याद रखना मेरे आका का फरमान है अन्नदामत तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना तौबा है। मेरे आका का फरमान है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। वो रब क़हारो जब्बार है तो रहमानो रहीम भी है। आओ रब की रहमत के तलबगार बन जाओ। पेशानी अल्लाह के सामने रख दो। तुम जरा सी पेशानी सामने रखोगे, तौबा का दरवाजा खुला है, शर्मिंदा हो जाओगे, रो लोगे, एहसास के 4 आंसू कतरे तुम्हारी आंखों
हाथों से गिर जाएंगे। वो करीम है, वो अपने महबूब के सदक़े में तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, जुर्मों को माफ़ कर देगा, ख़ताओं को माफ़ कर देगा, मुसीबतों को दूर कर देगा। वरना याद रखना, आज हमारी कौम ने क्या जहन बना लिया, हज़रत तावीज़ दे दें कारोबार में बरकत हो जाए। आखिरी 1 मिनट का जुमला दे रहा हूँ, हज़रत कारोबार का तावीज़ देने में बरकत हो जाए। किसी हज़रत को अपनी शॉप पर लगा दीजिए, 40 दिन सूरह बकरा पढ़ेंगे, कारोबार में बरकत हो जाएगी। ये तो ऐसे ही हो गया कि आपने किसी नल के नीचे एक मटका रख दिया पानी भरने के लिए, ऊपर से पानी आता है और नीचे से उसके अंदर सुराख कर दिया, पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे से गिर रहा है। ज़िंदगी भर चलाते रहेंगे नल, लेकिन कभी वो मटका भरेगा नहीं। आता है मगर साथ में बराबर निकलता भी है। ये ऐसे ही हो गया। एक तरफ हज़रत तुम्हारी शॉप पर कुरान पढ़े, तुम्हारे लिए दुआ